Hello everyone, my name is Shum Shukla and basically I'm starting this YouTube channel for all those aspirants who are preparing for GATE. Okay, so basically I'll try to cover all those subjects of GATE from very scratch to a good level. Okay, so this video is all about your control systems. Basically in this video I'll be dealing about control systems. Basically in this video I'll give you the overview of your control systems. Meaning of overview is that I'll be discussing the marks distribution that has been in control system from last years, the standard books that you need to follow, and lastly, obviously, the syllabus of your control systems. So this video is all about your overview of your control systems. See, control systems is definitely a very vast topic if you go by your university syllabus, but GATE does not require your university syllabus. It requires some part of your standard books. So you can focus on those parts and score a very good marks in control systems. See, this control system is a easy subject in your GATE. So if you study from the very basics and having a good concept of in control systems, then definitely you can score a very good marks, and that can also boost your rank in GATE marks and GATE scores also. Okay, so not wasting your much more time, I'd like to before starting this video, I'd like to tell you that after your GATE, you need to appear for interviews for MTech, MS or PSUs. Okay, according to your ranks. So basically, the kind of question that interviewer frame is quite different from the question that is asked in GATEs. So basically, for those, you should understand the concepts. You should understand the basic concepts of the subject. So I'll be discussing all those interview questions because I'm having experience in all those interviews. Mostly of them frame same kind of questions. So I'll be discussing all those questions in a good manner so that you can approach those questions in the interview in a right way. Okay. So not wasting on much more time, I'd like to start this video and I'll discuss the overview of control system. So moving further, okay. सो अपन स्टार्ट करते हैं क्या ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ओवरव्यू में बताऊंगा सबसे पहले तुम्हारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कंट्रोल सिस्टम कितने मार्क्स का पूछा जाता है। बेसिकली ऐसा देखो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब जो मैं मार्क्स बताने वाला हूँ कि इतने मार्क्स का पूछा जाता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तुम्हारा एप्टीट्यूड जो होता है 15 मार्क्स का, उसको छोड़ के कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट का कुछ भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स नहीं है। बट एटलीस्ट आई कैन से कि ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में बताने वाला हूँ, दिस हैज़ बीन इन अ ट्रेंड फ्रॉम लास्ट 15 to 20 ईयर्स। सो एवरेज ऑन एवरेज इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हाँ श्योर इतना पूछा जाएगा, लेकिन स्टिल ये कह सकता हूँ कि हाँ जो पिछले 20 साल से पूछा जा रहा है अभी तक तो नहीं चेंज किए हैं, आगे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। सो ये होगा तुम्हारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पहले बात करूंगा। उसके बाद बात करूंगा कि तुम्हारी स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी होनी चाहिए तुम्हारे कंट्रोल सिस्टम के लिए, एंड लास्टली द सिलेबस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये जानो कि कंट्रोल सिस्टम जो पूछा जाता है तुम्हारे गेट में, ऑन एवरेज कंसीडर अ वेटेज ऑफ 8 to 10 मार्क्स। ओके, 8 से 10 मार्क्स का इसका वेटेज होता है गेट एग्जामिनेशन में। कंट्रोल सिस्टम बहुत ही इजी सब्जेक्ट है तुम्हारे गेट के लिए। अगर तुम इस पर टाइम इन्वेस्ट करते हो तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि इसमें तुम 100 out of 100 मीन्स जितने भी 100 out of 100 मीन्स कंट्रोल सिस्टम में 100 out of 100 इस सब्जेक्ट में ला सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे जो कोर सब्जेक्ट होगा EMFT EDC कम्युनिकेशन, इसमें तुम और इलेक्ट्रिकल आयन का अलग होता है, ठीक है। बट अभी मैं कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो तुम अपने कोर सब्जेक्ट में जितनी मेहनत करते हो, जितना टाइम वेस्ट करते हो, वेस्ट नहीं करते इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, जितना टाइम इन्वेस्ट करते हो तो उससे लेकिन हमेशा ही कुछ ना कुछ क्रिटिकल कंडीशंस, कुछ ना कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। लेकिन ये सब जो इजी सब्जेक्ट्स हैं, अगर इनमें तुम टाइम अपना इन्वेस्ट करते हो सो तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। डेफिनेटली ये सब्जेक्ट को छोड़ना या फिर इसका कोई टॉपिक का छोड़ना ये मतलब सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसे सब्जेक्ट तो अच्छे से करना ही करना है, कम टाइम में अच्छे मार्क्स दिला देगी। सो बेसिकली 8 से 10 मार्क्स ही गेट में पूछा जाता है। उसके बाद क्या, उसके बाद सर देखो अगर जो स्टैंडर्ड बुक्स मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ ये तभी रेफर करना जब तुमको किसी कंसेप्ट में डाउट हो या फिर तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। इंटरव्यू में जब जा रहे हो तो बेसिकली वो भी उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स देखने के लिए, क्योंकि तुम्हारे इंटरव्यू में एप्लीकेशंस एग्जांपल जो होते हैं किसी कंसेप्ट से वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड बुक्स
तुम तब रेफर कर सकते हो, अदरवाइज यू डोंट नीड टू रेफर स्टैंडर्ड बुक्स, योर स्टडी मटेरियल, योर नोट्स, दिस इज ऑल सफिशिएंट टू क्लियर योर गेट एग्जामिनेशन, फाइन, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन एनी ऑफ द concept, then definitely you can go for what, these standard books. Okay, so the standard books that I am referring you is control system, control system, control system, control system engineering, control system engineering by what, control system engineering by नागराथ एंड गोपाल, ठीक है, नागराथ एंड गोपाल। सो इंडियन राइटर है, स्टैंडर्ड बुक है। अगर क्या कहते हैं तुमको इंग्लिश में बहुत अच्छी मतलब इंग्लिश नहीं है तो फिर क्या कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में ये अपन इसको ये अवेलेबल है, और पूरा का पूरा कंसेप्ट पूरा का पूरा तुम्हें हर चीज़ अच्छे वे में एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद जो सेकंड बुक है दैट इज़ कंट्रोल सिस्टम बाय नाइस, कंट्रोल सिस्टम बाय नाइस। अगर ये दोनों बुक्स पढ़ लेते हो सो यू विल गेट अ गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन स्टिल इफ यू आर ओनली सीरियस अबाउट गेट so you don't need to focus on these standard books, but if you are having any doubt in any of the concept then definitely you can go for these books, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पहले तो दो चीज़ें, एक तो ये जाना कि इसका वेटेज कितना रहता है, ठीक है, और दूसरा ये जान गए हम कि स्टैंडर्ड बुक्स कौन से अपन फॉलो कर सकते हैं फॉर आवर प्रिपरेशन ऑफ गेट एग्जामिनेशन फॉर कंट्रोल सिस्टम्स। नाउ जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट उस पर मूव करते हैं। थर्ड पार्ट कौन सा है, सिलेबस। सिलेबस जान जाते हैं कि सिलेबस क्या होता है और कहाँ से कौन सी चीज़ें किस लिए वे में इम्पोर्टेंट है गेट के लिए, ओके, ठीक है। हर टॉपिक अपने आप में अलग है, हर टॉपिक अपने आप में अच्छा है, तो अपन उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं सिलेबस। सिलेबस तो सबसे पहला जो यूनिट बोल सकते हैं अपन वो है बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। क्या है, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। बेसिक्स ऑफ, मैं CS लिख देता हूँ, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। देखो इसमें अपन को क्या पढ़ना है, इसमें अपने को पढ़ना है कि सर व्हाट इज अ सिस्टम, व्हाट इज अ कंट्रोल सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम नहीं टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, एंड जो लास्ट अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप एंड ऑर्डर, ओके। तो बेसिकली किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो वो डेफिनेटली एक क्वेश्चन उनका रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद लेकिन गेट के लिए लहजे से ये सिर्फ जो थर्ड अपना पॉइंट है टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वही लेने वाला हूँ, एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम से, एंड आई विल एक्सप्लेन यू द होल कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू योर बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ओके। नाउ सेकंड यूनिट इज योर ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन सर, ट्रांसफर फंक्शन वाई, देखो ट्रांसफर फंक्शन ऐसे तुम्हारी डेफिनेशन बुक्स में दे रखी हैं कि लैप्लास ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लास ऑफ इनपुट व्हेन इनिशियल कंडीशंस आर अज्यूम्ड टू बी जीरो। बट द इंटरव्यूअर विल आस्क यू सर व्हाई डू वी नीड ट्रांसफर फंक्शन, व्हाई डू वी नीड ट्रांसफर फंक्शन। सी देखो इमेजिन करो कि कोई कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम में कुछ इनपुट दोगे, कोई एक सिस्टम होगा, यू विल गेट एन आउटपुट, ओके। सो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रैक्टिकल तुम्हारा सर्किट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तुम कैसे रिप्रेजेंट करते हो, बाय द हेल्प ऑफ सम ब्लॉक्स, ओके। तो उस ब्लॉक्स को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सिस्टम इज बेसिकली द ट्रांसफर फंक्शन। तो जब तुम किसी चीज़ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हो सो थिंग्स बिकम वेरी ईजियर फॉर योर फर्दर एनालिसिस, ओके। जैसे कि अगर तुमने ट्रांसफर फंक्शन में उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया तो तुम क्या कहते हैं उसका स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हो, एंड फर्दर वी विल डिस्कस व्हाट कैन बी द फर्दर एनालिसिस फ्रॉम योर ट्रांसफर फंक्शन, ओके। नाउ तीसरा पॉइंट जो है अपन तीसरा मूव करते हैं वो है ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ्स। सो बेसिकली दीज आर द टू मेथड्स दैट आर यूज फॉर फाइंडिंग योर ट्रांसफर फंक्शन, ओके। कुछ है नहीं इसमें, सिग्नल फ्लो ग्राफ में तुमको एक फॉर्मूला मिलेगा दैट इज मैसन्स गेन फॉर्मूला, MGF, मैसन्स गेन फॉर्मूला। वो एक फॉर्मूला तुम लोगों को बताऊंगा, उसी के थ्रू सारे क्वेश्चन कर डालोगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ को या फिर ब्लॉक डायग्राम को, किसी का भी हो, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे उड़ा डालोगे, ठीक है। बहुत आसान होता है ये सब, इसमें कुछ है नहीं। और जो लास्ट है, इसका लास्ट नहीं है, जो फोर्थ यूनिट है दैट इज योर टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। टाइम रिस्पॉन्स, अब ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है रिगार्डिंग टू योर गेट, IAS, ISRO, वॉट एवर जो भी एग्ज़ाम देते हो कंट्रोल सिस्टम उसमें है, तो ये पॉइंट, ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, ओके। होता क्या है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, देखो अभी तक अपन ने क्या किया, अपन ने ये देखा कि सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, फिर उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लिया।
अब जब तुम्हारे पास ट्रांसफर फंक्शन फाइंड हो गया है तो तुम ये देखते हो कि हाउ द रेस्पॉन्स ऑफ योर सिस्टम इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन होता है सर आउटपुट का लैप्लास अपॉन इनपुट का लैप्लास। सो नाउ हम ये चेक करते हैं कि हाउ योर रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम सी ऑफ एस नहीं सी ऑफ टी, हाउ योर रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हम चेक करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। ऑर्डर क्या होता है अपन इसमें बात करेंगे। अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है स्टडी स्टेट एरर का। स्टडी स्टेट एरर भी टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मतलब आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चार यूनिट्स अपने को। तो जो फर्दर जो पांचवा यूनिट है वो स्टेबिलिटी का स्टेबिलिटी में अपन पढ़ते हैं एक राउथ हार्विट्ज क्राइटेरिया एंड फिर रूट लोकस। सो बेसिकली इन सब बारे में अपन अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस ले लेकर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जितनी भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चंस लूँगा और एक अच्छे तरीके से इसको तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत आसान है, राउथ तो बहुत आसान है, आरएल के लिए थोड़ा सा 4-5 अपन क्वेश्चन आरएल से कर लेंगे तो पूरा जो है चीज़ें माइंड में एकदम क्लियर हो जाएंगी, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं आएगी कभी, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में, जो छठा यूनिट है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। अब इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो सब लगाओगे तुम्हारे गेट के क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन सर जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है वो ये पूछता है कि सर आपने सारी एनालिसिस टाइम रिस्पॉन्स से कर ली, देन व्हाई डू वी नीड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ये तुम्हारे गेट के क्वेश्चंस में नहीं आता, बट स्टिल अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है इस सब चीज़ों का, तुम क्या कहते हैं बता सकते हो उन सब चीज़ों को, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, ओके। तो इंटरव्यूअर हमेशा तुमसे ये क्वेश्चन उसका 90% है पूछे कि आपने सारी एनालिसिस तो टाइम रिस्पॉन्स से कर ली, बट स्टिल तुमको फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस से करने की क्या जरूरत पड़ी, व्हाई डू वी नीड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस इन कंट्रोल सिस्टम, उसका ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहूँगा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस होता क्या है, छोटे में बताता हूँ। अभी अपन फर्दर जब इसकी वीडियोज़ आएंगी तो अपन इस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो होता क्या है कि एक तुम्हारा सिस्टम होता है, ठीक है, अपन एक इनपुट देते हैं और एक आउटपुट लेते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा सिस्टम है। मैं S/M लिख दे रहा हूँ, मतलब सिस्टम। इनपुट जो दिया जाता है वो एक कोई ना कोई साइनसॉइडल वेव होती है। साइनसॉइडल देने का मतलब ये होता है कि द वेव विच इज़ द इनपुट इज वेरिंग विथ योर फ्रीक्वेंसी। तो हम वो इनपुट वेव लेते हैं या फिर वो इनपुट लेते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी कर रहा है। नाउ वी वांट टू चेक हाउ योर आउटपुट इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। देखो हमेशा जब कोई भी सिस्टम में इनपुट तुम साइनसॉइडल दोगे तो आउटपुट भी साइनसॉइडल आएगा विथ सम फेज चेंज एंड मैग्नीट्यूड। तो हमको यही होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तुम इनपुट की फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हो और तुम देखते हो कि मैग्नीट्यूड और फेज तुम्हारा आउटपुट का कैसे वेरी कर रहा है। यही एनालिसिस तुमको करनी है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में मैग्नीट्यूड कैसे वेरी कर रहा है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी के साथ, तुम्हारा फेज कैसे वेरी कर रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ, ये सब तुमको देखना होता है। चलो, तो इसमें इसके लिए क्या कहते हैं, कई सारे प्लॉट्स होते हैं, जैसे बोर्डे प्लॉट हो गया, फिर पोलर प्लॉट हो गया, अरे POLAR ना, फिर तुम्हारा पोलर प्लॉट हो गया, फिर नाइक्विस्ट प्लॉट हो गया। सो ये तुम्हें अपनी पढ़ना है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में, नाइक्विस्ट प्लॉट हो गया। तो इसमें सब में अपने को क्या करना है, अपने को ये देखना हाउ योर मैग्नीट्यूड एंड फेज इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस वही होता ही है कि हाउ योर मैग्नीट्यूड एंड फेज इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू योर इनपुट फ्रीक्वेंसी। सो बोर्डे प्लॉट, पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट। एक बेसिक डिफरेंस है, हमेशा ध्यान रखो, बहुत कन्फ्यूजन आता है कि बोर्डे प्लॉट, पोलर, नाइक्विस्ट और RL तीनों के लिए अपन जो यूज़ करते हैं वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब GH यूज़ करते हैं, ठीक है, ये बताऊंगा, डोंट वरी। RL में भी अपन GH यूज़ करते हैं। अभी कन्फ्यूजन हो रहा होगा लेकिन फर्दर वीडियोज में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट राउथ के लिए अपन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करते हैं, दैट इज 1 + GH = 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में अपन एक पॉइंट और कंसीडर करते हैं, दैट इज गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। गेन मार्जिन, फेज मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू योर ऑल दोज MCQ एग्जामिनेशन जहाँ के लिए तुम जाते हो। गेन मार्जिन, फेज मार्जिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है तुम्हारे कंट्रोल सिस्टम के लिए, ठीक है। ईजी है, बहुत ईजी है, 2-3 फॉर्मूलेज हैं, बस वही सब समझ के वो सब हमने समझना है। लेकिन
जो तुम इंटरव्यू में जाओगे तो कभी भी तुम्हें फॉर्मूले से डेफिनेशंस नहीं बतानी होती हैं, हमेशा ध्यान रखना। तुमसे गेन मार्जिन पूछ ले, तुम सर गेन मार्जिन इज इनवर्स ऑफ योर मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा पीसी, ये कहीं नहीं बोलने वाले हो। तुम्हें बोलना क्या है सर कि सर गेन मार्जिन, देखो गेन मार्जिन क्या होता है, मार्जिन मतलब क्या होती है, बाउंड्री, गेन। सो बाउंड्री ऑफ योर गेन, हम अपनी किसी सिस्टम की गेन को कितना बढ़ा सकते हैं, कितनी बाउंड्री तक ला सकते हैं, सच दैट सिस्टम रीचेस टू द वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी। मतलब कहने का क्या है कि सर तुम्हारे पास कोई गेन है, उसको तुम कितना बढ़ा सकते हो, कहाँ तक ले जा सकते हो, ताकि सिस्टम एक स्टेबल से इनस्टेबिलिटी तक, मतलब इनस्टेबल हो ना जाए, अनस्टेबल हो ना जाए, ठीक है, अनस्टेबल बोल लो तो अनस्टेबल हो ना जाए, उसकी बाउंड्री तक, उसकी बाउंड्री तक हम एक स्टेबल सिस्टम की गेन को कितना बढ़ा सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ गेन मार्जिन। फेस मार्जिन मतलब फेस को कितना बढ़ा सकते हैं किसी भी स्टेबल सिस्टम का, सच दैट इट रीचेस टू द वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी। अपन सब डिस्कस करने वाले बहुत अच्छे वे में, डोंट वरी, ठीक है। ये तो अभी बस बता दे रहा हूँ कि सिलेबस तुम्हारा क्या क्या है, ठीक है। चलो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। उसके बाद तुम्हारा जो 7th पॉइंट है कंपनसेटर एंड कंट्रोलर। तो इंटरव्यूअर इसमें तो क्या कहते हैं, सारे के सारे ये पॉइंट, ये जो तुम्हारा यूनिट है बहुत आसान है यार, इसमें 2-3 फॉर्मूले कर लोगे, 2-3 क्वेश्चन कर लोगे, पूरा का पूरा कंपनसेटर कंट्रोलर खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है ना वो अच्छा है। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है, जैसे तुम्हारे कंपनसेटर को, किस कंपनसेटर को किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा होती है, स्टेडी स्टेट एरर किससे कम होता है, तो ये सब एनालिसिस अपन इसमें करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे उसकी, ठीक है। कंपनसेटर कंट्रोलर का यूज़ समझ लो क्या होता है। कंपनसेटर कंट्रोलर का जो यूज़ होता है ना वो ये होता है कि जैसे मान लो कि तुम्हें कोई आउटपुट चाहिए होता है किसी कंट्रोल सिस्टम में, एंड यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट, so what you do, you can connect a compensator or controller according to your need and you can manage your output, okay। मतलब आप अपने आउटपुट को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो उस कंपनसेटर और कंट्रोलर की, मतलब जो भी तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक हो उसके हिसाब से वो आउटपुट देता है, ठीक है। सो टू गेट अ डिजायर्ड आउटपुट, वी कैन से टू गेट अ डिजायर्ड आउटपुट वी ऐड अ कंपनसेटर और कंट्रोलर इन आवर सिस्टम, ओके। नाउ द लास्ट एनालिसिस योर स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। सो स्टेट वेरिएबल एनालिसिस हम पढ़ते हैं, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद अपन पढ़ते हैं ये कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी किसी भी इंटरव्यू में जाओगे 100% पूछने वाला है, कंट्रोलेबिलिटी क्या होता है, ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होता है। लोग क्या कहते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है वो बता देते हैं, बट तुमको वहाँ फॉर्मूला नहीं बताना है, कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी की जो मीनिंग है, जो मीनिंग फ्रॉम द कंसेप्ट है वो बताना होता है हमेशा इंटरव्यू में। इंटरव्यू अगर तुमसे कोई पूछता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तो यू डोंट टेल सर दिस, उसको फॉर्मूले से मत एक्सप्लेन करो, यू शुड टेल कि सर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसकी डेफिनेशन आती है वो जहाँ से ओरिजिनेट होती है वो चीज़ें बतानी है अपने को, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल एनालिसिस अगर अपन पढ़ लिया तो उसके बाद अपन का पूरा सिलेबस हो जाता है। सो मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। उसमें अपन बात करेंगे कि बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम में कितने टॉपिक्स है तुम्हारे गेट, आईएएस और बाकी सारे पीएसयूज और जो भी तुम्हारे एग्जाम्स हैं उन सब के लिए। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, ओके।